میرے نبی جب چھوٹے سے تھے، بچے تھے، گود میں تھے، حضرت حلیمہ پہ آتے کہاں تھے بولو؟ اور بولو یا ختم کر دوں؟ ہاں یہ اور بڑھیا لگا، توجہ ہے نا، 4 بجے کا نام سن کو لے وہ چل دیے، لیکن انشاءاللہ آئیں گے، کوئی بات نہیں ہے، آئیں گے، ضرورت ہے، ضرورت کے بعد بچہ ہے، بچہ کو لٹا کر کے آئیں گے انشاءاللہ، توجہ ہے نا۔ میرے نبی چھوٹے سے ابھی بچے، اللہ اب ہوا یوں، میرے نبی حضرت حلیمہ کے یہاں پر، اب عورتوں نے دیکھا حلیمہ کے گھر میں رات بھر لائٹنگ ہوتی رہتی تھی، رات بھر روشنی، رات بھر اجالا۔ اس وقت نا جو زیادہ مالدار ہوتا تھا تو پوری رات چراغ جلتا تھا، جیسے آج کے دور میں جب سوتے ہیں نا تو ایک بلب جلنے دیتے ہیں، وہ بھی نائٹ بلب، اور باقی بند کر دیتے ہیں تاکہ بل کم آئے، اور مالدار جو ہوتے ہیں موٹر چل رہی تو چل رہی، بلب جل رہے تو جل رہے، سمجھے، پنکھے چل رہے ہیں تو چل رہے، بل زیادہ۔ تو ایسے ہی اس دور میں لائٹ تو تھی نہیں، چراغ جلتے تھے، ڈبی جلتی تھی، تو جن کے پاس مال و دولت ہوتی تھی تو وہ چراغ پورا تیل جل جاتا تھا، پوری رات میں پھر دوسرا ڈالنا پڑتا تھا روزانہ اجالا کرنے کے لیے۔ تو عورتیں آپس میں کہنے لگی حلیمہ کے یہاں جب سے وہ بچہ آیا لگتا ہے حلیمہ کو کوئی نہ کوئی ملسا ہاتھ آ گیا، حلیمہ کے کوئی مال ہاتھ آ گیا۔ اور عورتیں ایسے بڑے سونگتی پھرتی ہیں، سونگتی، صحیح بتا رہے ہو، میری بہنیں بیٹھی ہیں، سونگتی، اگر کسی کے جنازے میں جائیں گے نا تب بھی کپڑے دیکھتی پھر رہی ہے، کیسے پہنی ہے، کیسے لائی ہے، کیسے، مردے کے لیے اے اللہ تو اس کی مغفرت کر دے نہیں کہے گی، ڈھونڈ اور جو اچھا لگا بولی کہاں سے لائیے کپڑے، وہی لے لے گی، پورا پتا۔ تو سونگتی پھر رہی ہے، عورتیں لگ گئی جی، ہاں عورتیں لگ گئی، ان کا فوٹو لینا تھا چینل والوں لے لیں، بتاؤ چینل والے ہی سو جائے گا تو پھر اب کیا ہوگا جی ماشاءاللہ، لحاظ دے دیو ان کو، سراج بھائی کو، کوئی بات نہیں ہے، رات بھر جگتے تو بیٹھے بیٹھے، یہ بھی ایک ہنر ہے، تم سے بیٹھے بیٹھے نہیں سوئے جائے گا، ان کی پوری نیند نکل جائے گی اور بندہ جھٹکے نہیں مارے گا۔ اب سنو، عورتیں کہنے لگی حلیمہ، 1 مہینہ تک تو آپس میں بات کرتے رہی، ڈھونڈتے رہی مال کہاں سے ہاتھ لگا، اب کہنے لگی حلیمہ جی ہمیں معلوم ہے تمہارے پاس دولت ہاتھ آ گئی۔ حلیمہ مسکرا رہی، ہاں آمنہ کا لال آ گیا، اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ کہنے لگی حلیمہ کوئی نہ کوئی تو ملسا ہاتھ آیا، کب کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ حلیمہ تیرے چراغ تو رات بھر بندی نہیں ہوتا۔ حلیمہ بولی جب سے نوری بچہ آیا میں نے چراغ کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، میں تو چراغ جلاتی نہیں۔ اب عورت تو جلدی نہیں مانتی ہے نا، عورت بولی ہوں ایسے کیسے ہو جائے گا، ہم نے دیکھا اپنی آنکھ سے پوری رات اجالا تھا، مگر عورتیں، حلیمہ بولی میں چراغ نہیں جلاتی، 2-3 عورتیں رات کو چھپ کے روشن دان میں سے دیکھ رہی ہے، اللہ اللہ میرے نبی لیٹے ہوئے ہیں، چہرہ انور ادھر کو ہوا، روشنی ہو جاتی ہے، وہ نوری چہرہ اعلی حضرت بولے میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، اور نور دل تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اب عورتوں نے دیکھا، کہنے لگی ارے یہ تو اس بچے کا کمال ہے، صبح کر کے کہنے لگی حلیمہ اس بچے کا ذرا دیدار کرا دو، کا کس بچے کا، کہا جس کے چہرے سے رات روشنی ہو رہی تھی، اس کا دیدار کرا دو۔
अल्लाह समद, मेरी तरफ तवज्जो जी। अब जब देखा तो औरतें ना दुखड़े ज्यादा रोती हैं, दुखड़े। अगर सास है ना सास और बहू अगर आधा घंटा लेट जाए ना, बेचारी की कमर में दर्द या सर में दर्द या तबीयत कुछ नासाज है, तो 10 घर मोहल्ले मेरी बहू तो पड़ी रहती है, वो तो महारानी है साहब, वो क्या करेंगे उठ के। अच्छा वो दूसरी पूछे तेरी बहू काम ना करती है, कर रही है, कहाँ पड़ी रहती है, पड़ी, पता नहीं उसकी अम्मा ने क्या सिखाया, ले गई अम्मा नानी तक को। ऐसे हालात। औरतें बोली हलीमा, एक औरत का ना बच्चा इतना बीमार, जो दाइयां दूध पिलाने लाई थी ना, अब ये बच्चा बच जाए तो बड़ी बात है, हमें पैसा कहां से मिलेगा। कहने लगी हलीमा जब से तुम्हारे घर में बच्चा है, तुम्हारे तो रेल पेल हर चीज की दौलत की फरमानी हलीमा, मगर हमारा बच्चा जब से आया है ये तो बीमारी बीमार है, इसकी दवाई दवा चल रही है, ठीक होने का नाम नहीं लेता। मेरे नबी हजरत हलीमा की गोद में का जरा दिखाते तो का बराबर में जब वो बच्चा लाई, मेरे नबी कुल बुलाए और मेरे नबी का पांव उसके सीने पे रख गया। हलीमा बोली जा तेरे बच्चे का काम हो गया। अब फिर बरेली के इमाम बोले जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा। ये शेर किस मौके को देख के कहा वो भी सुन लो। जब ये बात थी तो उड़ गई, औरतों में उड़ती भी बहुत जल्दी है। अगर तुम्हें कोई बात उड़वानी है ना तो तुम मीडिया में मत दो, पेपर में मत दो, किसी बहन को बता दी हो, समझे, सुबह ही सुबह जाएगी बगैर ना, अरे तुझे पता चला मोहल्ले में ऐसे हुआ, ये हो गया, उसको बोली अच्छा, और बोली देख कहिए किसी से मत। फिर दूसरे घर जाके पूरी बकौली कहिए किसी से मत, एक दर्जन घर कह कर वो कह गई कहिए किसी से मत। अल्लाह की बंदी तू भी तो किसी को छोड़ दे। तो अगर बात फैलवानी है तो सबसे ज्यादा इस मीडिया से आगे कोई मीडिया नहीं। तवज्जो है ना, आज तो लगता से वास्ता बढ़ गया। अल्लाह अल्लाह कहा, अब बात हो गई, अरे पान मत खाओ यार, कौन बेटा मेरे तरफ, मेरे लिए तुम तो पढ़े लिखे हो यार, ये सफेद कुर्ते वाले, तुम तो इधर को हो जाओ, तुम वहां से खेल लेकिन हाँ, मुझे तुमसे ज्यादा फिक्र ना मैक वालों की है। अगर ये सोगा तो पड़ाक से नीचे ही होंगे, और पता नहीं हाथ टूटे पाँव टूटे, ज्यादा ऊपर से तो नहीं है। तवज्जो ना, तवज्जो। वो कहने लगी हलीमा तुम्हारे बच्चे का जवाब नहीं। मेरे नबी जब बच्चे तो हलीमा के यहाँ पर है, अब पूरी बस्ती में उड़ गई हलीमा के यहाँ जो नूरानी बच्चा बरकत वाला शिफा भी देता है। अब तो तू चल मैं चल, मरीज आने लगे, हलीमा हमारे बच्चे बीमार है। कोई बोला हलीमा हमारा शौहर बीमार है, उस बच्चे का कदम रखवा दो। कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला। हजरत शीम और हजरत हलीमा एक बड़ा सा कूड़ा लाई, एक बर्तन लाई, और ला करके मेरे नबी के पांव धुलवा दिए। और धुलवाने के बाद जब मेरे नबी का धुला हुआ पानी था, पांव जो धुला हुआ था, वो पूरा धोवन मरीजों को बांट दिया। जो डॉक्टरों से ठीक ना हो, हकीमों से ठीक ना हो, वो मेरे नबी के पांव धुले हुए धोवन से ठीक हो जाता है। अब बरेली के इमाम यही तो बोले, जिनके तलवों का धोवन
मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मेरे नबी जब बड़े हो गए 4.5 साल के, हजरत हलीमा लेकर के चली कि चलो मक्के वापस कराए। अब मेरे नबी आगे बैठे ऊँटनी पे, हलीमा पीछे बच्चे को गोद में लिए, ऊँटनी चल रही है। कहाँ जा रहे हैं? हजरत आमना को वापस करने, अब्दुल मुत्तलिब जो दादा थे उनकी अमानत वापस करने। हजरत शीमा रो रही है, कह रही है अम्मी जान मोहम्मद अरबी को मत ले जाओ। अल्लाह, मेरे नबी चले गए। अब जब जंगल में पहुंचे, उठ के क्यों रुक रहा, उठी जाओ। अब जब जंगल में पहुंचे, तवज्जो है मेरी तरफ, जंगल में पहुंचे तो जंगल में कुआं देखा। उस कुएं पर एक औरत बाल फैलाए हुए रो रही है और कह रही है कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। हजरत हलीमा ऊँटनी नहीं रोक रही है। मेरे नबी ने इस तरीके से 2 उंगलियां की, ऊँटनी के यहाँ पर दोनों उंगलियां ऐसे करा दी, ऊँटनी के पांव जम गए। लोग कहते हैं हम नबी की तरह, इनसे कहिए डूब मरो चुल्लू भर पानी में। तुम किसी ऊँटनी के ना ऐसे कर देगी तो और कूद के भागेगी। हाँ सही कह रहे, बच्चे ने सही बताया, समझे। अब कहा क्या, मेरे नबी ने यूं कहा, ऊँटनी जम गई। वो औरत कह रही है कोई मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। हलीमा उतरी, मेरे नबी और हलीमा उस औरत के पास पहुंची। 4.5 साल के नबी हैं। वो औरत से हलीमा बोली क्या बात है? वो औरत कहने लगी बहन सुनो, मेरी गोद में दूध पीता मेरा बच्चा था, मुझे प्यास थी, मैंने कुएं में झांक के देखा पानी कितनी अंदर है। वो बच्चा मेरे हाथ से हिला और मेरे हाथ से छुट के कुएं में गिर गया। 4-5 मिनट हो गए, अब वो बच्चा मर ही गया होगा, ऊपर नहीं आया। मेरा क्या होगा? मेरा शौहर मुझे घर से निकाल देगा। कोई मेरी मदद करो, कम से कम मरा हुआ बच्चा ही निकाल दो। मेरे नबी चले कुएं की तरफ। हलीमा ने आका को पकड़ लिया, कहा नहीं बेटा मोहम्मद नबी तुम नहीं, एक बच्चा गिर चुका है, मैं नहीं भेजूंगी। अगर किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए ना तो माएं अपने बच्चों को कितना पकड़ती हैं, और बच्चों की आदत होती है खड़ाक से दरवाजे में भागेगा, उसे रोक रोक के माएं रखती है, थोड़ी किवाड़ खोलो भी मिल जाए, दरवाजे बीच में बैठता, रोड पे बीच में। तो बच्चे की आदत होती है। बच्चे भी यार ये खिलौने ही अलग है, सही बता रहा हूं, ये जिंदगी अलग है, थकावट उतार देते, थकावट। मेरे नबी कुएं की तरफ चले, हलीमा ने डांट लिया, पकड़ लिया। अब मेरे नबी का हाथ पकड़ा, हलीमा इधर को खींच रही नबी कुएं की तरफ को, हलीमा इधर कहने लगे माँ थोड़ी सी मोहलत दे दो। का बेटा नहीं नहीं, का माँ क्या करूं, मैं आया इसीलिए हूँ कि रोते हुए को आंसू पोंछूं, गिरते हुए को सहारा दे दो, भूखों को खाना खिला दो, नंगों को कपड़ा पहना दो, जिसका कोई सहारा ना हो मोहम्मद अरबी उसी के लिए तो आया है। लेकिन माँ है, दिल नहीं मानना, का नहीं बेटा, का माँ बस मुझे मन तक जा दे दो, कुएं की मन तक। मेरे नबी जब वहां पर पहुंचे, हलीमा हाथ पकड़े, 4.5 साल की उम्र। नबी की उम्र शरीफ कितनी है बोलो? अल्लाह, ये सो के उठे क्या अभी? 4.5 साल की उम्र शरीफ। तवज्जो, मेरे नबी हाथ खींच के कुएं के मल पे पहुंचे, ऊपर देखा, नीचे देखा, इधर देखा, उधर देखा, कोई रास्ता नहीं मिला। नबी ने हाथ उठा करके अल्लाह जाने क्या पड़ा और कुएं के अंदर थूक दिया, और जैसे
तो उसने देखा और चिपट गई, मेरे बच्चे मेरे बच्चे, मगर बच्चा मर चुका था। 5-6 मिनट पानी में रहे, बच्चे की सांसें खत्म। मेरे आका को पकड़ा, हलीमा चलो बेटा चलो। मेरे नबी रुके हुए, वो औरत हलीमा से हाथ जोड़ के कहने लगी, हलीमा तुम्हारे बेटे का मैंने कमाल देख लिया, अगर तुम्हारा बेटा थूक दे तो कुआं मेरे बच्चे को वापस कर दे, इससे कह दो मेरे बेटे पे फूंक दे। अगर ये बच्चा मोहम्मद अरबी फूंक दे तो इसकी सांसें भी वापस आ जाएंगी। मेरे नबी ने अपना कदम रखा और उस बच्चे को हरकत दिला दी, उस बच्चे को